Okay, this morning I am going to begin a new series with you. और आज की सुबह मैं आप लोगों के साथ में एक नई श्रृंखला की शुरुआत करूंगा। Hopefully, it will conclude in 5 different messages. और 5 अलग संदेश में हम इसको देखेंगे और समाप्त करेंगे। And it's about vision. और ये है दर्शन के बारे में। So we often are not able to see things clearly because we need a correction. I need it. So I wear my glasses to see. और कई बार हम कुछ चीजों को नहीं देख पाते, हमको उन चीजों को देखने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको किसी चीज को साफ तौर पर देखने के लिए एक चश्मे की जरूरत पड़ती है। Proverbs 29:18 says, और नीति वचन 29 का 18 कहता है, where there is no vision, people perish. जहां कहीं भी दर्शन नहीं है वहां लोग नाश हो जाते हैं। Okay. So where there is no vision, people perish. In other words, a vision defines what we are, who we are, what we do, and everything about us. और ये दर्शन जो है हमको बताता है कि कौन है, हम क्या कर रहे हैं, और हमारी एक परिभाषा देता है। Okay, it's not just a pretty picture. I mean, I'm very happy that Ajay read that picture because you're going to look at some of those things. और मैं खुश हूँ कि अजय भाई ने उन चित्रों को पढ़ा और कुछ चीजों को हम देखेंगे वहीं पे। It's not some mystical experience. ये कोई ऐसे इस तरीके का जादुई अनुभव नहीं है। A vision is our goals. It's our ambitions, our decisions to reach certain ends. और एक दर्शन हमारा एक लक्ष्य होता है और एक मुकाम पे पहुंचने के लिए एक जरिया होता है। Okay, it defines our outlook to life. और ये हम दिखाता हमारा नजरिया जीवन को देखने का। In other words, how you will view your life. और दूसरे शब्दों में आप जीवन को किस तरीके से देखते हैं। It is that inner sight, और ये अंदरूनी एक तरीके का देखना होता है, which is an inner understanding also, और ये एक समझ भी होती है that helps you to move forward. जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। It is that revelation ये वो एक प्रकटीकरण है that fuels how you think, जो आगे बढ़ता है उन चीजों की जो आप सोचते हैं, how you see, जैसे आप देखते हैं, how you hear, जैसे आप सुनते हैं, feel and act. और जैसा महसूस करते हैं और उसके ऊपर आप कार्य करते हैं। What defines the vision that guides you through your life? और उस दर्शन को क्या परिभाषा देता है जो आपके जीवन में अगुवाई करता है। What are those different components of a solid vision that you and I need for our life's journey? और वो कौन कौन सी बुनियादी बातें हैं जो इस दर्शन में आपको लेकर चलती इस जीवन के सफर में। I think Rohan brought this prophetic word and said we are like wanderers in the wilderness. We walk and we have to see God move towards it. He was talking about life and life's journey. और जैसे रोहन ने लेकर आया इस बात को कि हम उसने देखा कि हम सभी लोग एक रेगिस्तान में हैं और हम चल रहे हैं और वो दिखा रहा है हमारे जीवन को वहां पर। How you see the vision you have for that journey, कि किस तरीके से आप उस दर्शन को देखते जो सफर में वो आपके लिए है, how you embrace that vision, कैसे आप उस दर्शन को गले लगाते हैं, which will determine how quickly and how well you reach the end of your goal. और इसी से तय होगा कि कैसे आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। And so this morning, we're going to look at one of the very famous passages, and I'm going to spend, I told you, 5 different weeks on this. और एक मशहूर जो वचन है बाइबल का उसको हम देखेंगे और उसके ऊपर हम 5 हफ्ते जिस तरीके से मैंने बताया वो हम देंगे। And I'd like someone to read today the whole section, though we are only going to look at the first verse. और मैं चाहता हूँ कि कोई एक सेक्शन को पढ़े। Someone will read it in Hindi. You can put it up in English, Komal. और It's हिंदी में कोई Isaiah पढ़े। chapter 6, यशायाह 6 verses 1, उसका पहला वचन right up to the end of that section. At और 13 it is. Just check. I don't have it here. It's 1:3. 13वें वचन तक। 1:13 up to 13, correct. Okay, who will read? Nane. I always catch Nane because he has the best Hindi translation in church. His Bible is the best translated one that I know of. जब उज्जियाह की मृत्यु हुई, मैंने यह दर्शन देखा, एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर स्वामी बैठा है, उसकी राजसी पोशाक के छोर से मंदिर भर गया, उसके ऊपर की ओर 7 स्वर्गदूत खड़े थे, प्रत्येक दूत के 6 पंख थे,
वे 2 पंख से अपना मुंह ढके थे। उन्होंने 2 पंखों से अपने पैर को ढांप लिया था और शेष 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। एक दूत दूसरे दूत से उच्च स्वर में यह कह रहा था, पवित्र पवित्र स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु पवित्र है, संपूर्ण पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। उसकी आवाज से ड्योढ़ी की नींवें थर्रा गई, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय, अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य के मध्य निवास करता हूँ। मैंने साक्षात स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु महाराजाधिराज की ओ अपनी आंखों से देखा। तब एक साराप दूत ने वेदी पर से एक अंगारा चिमटे से उठाया। वो उसको हाथ में लेकर उड़ा और मेरे पास आया। उसने मेरे होठों को अंगारे से स्पर्श किया और यह कहा, देख, इसने तेरे होठों को स्पर्श किया, अतः तेरा अधर्म तुझसे दूर हो गया, तेरा पाप क्षमा कर दिया गया। तत्पश्चात मैंने स्वामी की यह वाणी सुनी, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? मैंने कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे भेज। प्रभु ने कहा, जा और लोगों से यह कह, निस्संदेह तुम प्रभु का संदेश सुनोगे, पर तुम उसको समझोगे नहीं। तुम उसको अपनी आंखों से देखोगे, पर उसको पहचानोगे नहीं। इन लोगों की समझ पर पत्थर पड़ गए हैं, इनके कान बहरे हैं और आंखें अंधी, अतः ये अपने कानों से सुन नहीं सकते और ना आंखों से इन्हें दिखाई देता है। इनका हृदय समझ नहीं पाता, अन्यथा ये पश्चाताप करते और मैं इनको स्वस्थ कर देता। मैंने पूछा, स्वामी, ये स्थिति कब तक रहेगी? प्रभु ने कहा, जब तक नगर उजड़ कर निर्जन ना बन जाए, जब तक मकान सुनसान ना हो जाए, जब तक खेत पूर्णतः उजड़ ना जाए। मैं प्रभु इन लोगों को इस देश से हटाकर दूर देश ले जाऊंगा। इस देश के अनेक स्थान उजाड़ हो जाएंगे। यदि जनसंख्या का 10वां अंश भी शेष रहेगा तो वह भी नष्ट होगा। जैसा तारपीन अथवा बांज वृक्ष के कट जाने पर उनका ठूंठ शेष रहता है, उनका ठूंठ एक पवित्र वंश है। You see, this morning, and thank you, Nane. And it's a whole verse, but we're going to look whole chapter that we'll look at over a period of time. But we're only going to look at the first verse this morning. और जैसे आगे जाके हम पूरे अध्याय को भी देखेंगे, पर आज के लिए जब है उसके पहले वचन को देखेंगे। But before we go there, I want to say something. This morning, the prophetic words that came. और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं जो आज के जो भविष्यवाणी के वचन है, In short, was simply saying, don't look at your problems, look at God. और वो ये कह रहे थे कि अपनी समस्याओं को मत देखो, परमेश्वर को You देखो। see, a vision from God is a vision of God from God. क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक दर्शन परमेश्वर का दर्शन होता है, परमेश्वर की ओर से। It is not a vision from us of God. हमारी ओर से परमेश्वर का वो दर्शन नहीं होता। And as we grow in seeing and understanding that vision of God coming to us, और जैसे हम बढ़ते परमेश्वर के दर्शन की ओर जो हमारी ओर आता है, as we begin to see the vision from the perspective and the lens of the heaven or of heaven and of God, और जब हम स्वर्ग के नजरिए से उस दर्शन को देखते हैं, everything changes. सब बदल जाता है। Life has meaning जीवन का एक अर्थ होता है and our destinies are fulfilled. और हमारे जो भाग्य, हमारे जो मुकाम है वो पूरे हो जाते हैं। But as long as we mix that vision with our own vision, और जब कभी हम उस दर्शन को हमारे दर्शन के साथ मिला लेते हैं, we need to correct it. हमको उसको सही करना है। Isaiah was a man with a prophetic ministry. और यशायाह जो भविष्यवक्ता था, उनका भविष्यवाणी की सेवकाई थी। And before this vision story, he was functioning as a prophet. और इस दर्शन के पहले वो कार्य कर रहा था भविष्यवाणी के क्षेत्र में। But in Isaiah chapter 6, he sees a vision that changes his entire ministry. और यशायाह 6 में जो उसको दर्शन मिलता है, उससे उसका पूरा जीवन बदल जाता है। And his life was never the same again. और फिर उसके बाद उसका जीवन सामान्य नहीं रह जाता। He started his prophetic ministry in the time of King Uzziah. और उसने ये राजा उजिया के समय में अपनी भविष्यवाणी की सेवकाई की शुरुआत करी। They also called him King Azariah. और उसको राजा इजराया भी कहा जाता है। And he went on to prophesy through the reigns of Jotham, Ahaz, Hezekiah, and finally Manasseh. और वो जाता राजा उजिया, योतान, आहाज और हिजकिय्याह के पास। He was an advisor to the kings, a reformer and a statesman.
और वहां पर वो एक तरीके की नई सोच को लेकर आने वाला और एक तरीके का सलाहकार था वहां पर। Okay. And when you read his prophetic words, it's like his heart is in things of eternity. और जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसका दिल जो अनंत काल की बातों में था, His mouth and his hands are in things of time. और उसके जो हाथ थे और उसका जो मुंह था उन चीजों के समय में था, His spirit is in the eternal counsel of God. और उसकी जो आत्मा थी वो परमेश्वर के काउंसिल में थी, And his body is in that very moment of history. और उसका जो शरीर था उस इतिहास के दौर में था। But that's not how he felt when this vision happened. और उसको तभी ये महसूस नहीं हुआ जब उसने इस दर्शन को देखा। The first verse begins in the year King Uzziah died. और इसकी शुरुआत ये थे जिस वर्ष राजा उजराया मरा। King Uzziah or King Azariah was one of the greatest kings of Israel. और राजा उजरिया जो था इजराइल के महान राजाओं में से एक था। Okay, after David and Solomon, he was the next great king. और दाऊद और सुलेमान के बाद वही महान राजा था। He became king at the age of 16. 16 साल की उम्र में वो राजा बना He obeyed God and had a strong kingdom. और परमेश्वर का आदर किया और उसका एक मजबूत राज्य था। He built towers and fortified cities. और उसने बड़े बड़े जो टावर्स में इमारतें बनाई, He lived the land and built wells for water. और उसने जमीन को निकाला और कुएं खोदे। But then he got leprosy और फिर उसको कोढ़ हो गया on his forehead. उसके माथे पर। And then he co-reigned with his son in an isolated house. और फिर उसने राज्य के अपने बेटे के साथ एक अलग एक दूर दराज के घर में, He was king for 52 years in Jerusalem. यरूशलेम में 52 साल वो राजा रहा। Why did he get leprosy? What happened? और वो कोढ़ के कारण मरा क्यों? क्यों ऐसा क्या हुआ? Because he felt that everything depended on him. क्योंकि उसको लगा कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है। And he decided that he should burn incense before the altar of God and not the high priest. और उसको ये लगा कि परमेश्वर के वेदी के सामने उसको धूप जलाना चाहिए, ना कि परमेश्वर के महायाजकों को। God has called us to a function, each one of us. परमेश्वर ने हम सभी को एक कार्य में बुलाया है, And each one will function according to that call. और हर एक अपने बुलावे के हिसाब से उसमें कार्य The करेगा। problem with the human heart is we have a vision to see ourselves advance. और इंसानी जो दर्शन, अब इंसानी दिल में ये बात है कि वो अपने बारे में ऐसा दर्शन देता है कि वो अपने आप को ही बड़ा बनाना And this is चाहता a good thing and a bad thing. है। ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है, Because as we decide that we want more, we forget the vision is of God, from God, and by God, and not of ourselves. और हम इस चीज को भूल जाते हैं कि वो जो दर्शन है परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के लिए है। King Uzziah forgot. राजा उजरा भूल Good गया, man, and Isaiah prospered under him. But और यशा उसके नीचे से समृद्ध बना। like all visionaries, King Uzziah also dies. और सारे राजाओं की तरह राजा उजया भी मर गया। But a vision cannot die. पर एक दर्शन कभी नहीं मर A सकता। vision must live on, एक दर्शन को हमेशा आगे बढ़ते रहना है, inspire, motivate, and guide the generations to come. प्रेरणा देनी, हिम्मत देना है, हौसला देना आने वाले पीढ़ियों के लिए। So while you may do new things, the vision is still the same. हालांकि आप नई चीजों को करोगे पर दर्शन तब भी जिंदा रहेगा और वो आगे बढ़ता रहेगा। The visionary who carried God's vision for his people, King Uzziah, has died. और जिसने उस दर्शन को लेकर चल रहा था, राजा उजाया मर गया। And Isaiah is probably wondering, what now? My king or my cousin and my boss is dead. Now, what's about me? Who's the next one? How am I going to manage? Everything has changed. और वो देख रहा है कि यहाँ पर राजा की मौत मृत्यु हो गई, अभी आगे क्या होगा? कौन इसको आगे लेकर चलेगा? What will the future hold? और आगे का भविष्य क्या होगा? He, like most of Israel, would have seen King Uzziah as the hope of Israel. और बाकी लोगों की तरह उसने भी देखा रहेगा कि राजा उजया एक उम्मीद के तौर पर उसने भी देखा रहेगा। The king was always the hope of Israel. और राजा हमेशा से इजराइल का उम्मीद था। That's why the King of Kings will need to come. और इसलिए राजाओं के राजा को आना क्या? He, like most of his, okay. But that hope has died. That hope was dead. What we thought has not happened. He's died. और जो हम चाहते थे वो नहीं, हमारी जो उम्मीद थी वो मर गई। And in that
time of hopelessness, he has to correct his vision. और निराशा के उस समय में उसको अपना नजर, उसके जो दर्शन था उसको सही करना था। Like the people of Israel, we also adopt a vision for our lives. और इजराइल के लोगों की तरह हम भी कुछ ऐसे दर्शन को अपने लिए ले लेते हैं, And they're shaped and influenced, okay, by the world views of others. और उसको आकार मिलता है और उससे हम प्रभावित होते हैं संसार के देखने के नजरिए से। They may be learned men, celebrities, political or community leaders. और हो सकता है उन सारी चीजों को जो मशहूर लोग हैं उनसे, They राजनेताओं could से be और समाज The के जो film अगुवे वहां song से, that you love to listen to because you like what it means. और हो सकता है कुछ Or like गाने जो my आपको friend पसंद Sharad, हो, it will be the shairi that he thinks is so profound. या फिर उन शायरियों से जो आप सुनते हैं It will आपको be पसंद है। something that guides us and motivates us. And it changes how we think. It makes us behave and act and react in a certain way. और कुछ ऐसी चीजें जिससे हम प्रभावित होते हैं, जिससे हमारा बात करने का, देखने का सारा नजरिया बदल Okay, जाता है। our friends and what they tell us, something they say, and then we want to agree with them and we want to be part of them. That's the influence. और हमारे दोस्त जो भी हमसे कुछ कहते हैं, उनका भाग होने के लिए हम उन चीजों को अपना लेते हैं और बाकी और चीजें को And देखते हैं। these are like the King Uzziahs of our lives. और ये राजा उजाया की तरह है हमारे जीवनों में। Okay, we may learn to adopt many things for our lives from such people, and it's not wrong. और हम देख सकते हैं इन सारी चीजों को हमारे जीवन में हम ले सकते हैं, जो कि गलत भी नहीं है। Okay, and a lot of us may change in some areas for the better. और कुछ बेहतरीन चीजों के लिए हम बदल भी सकते हैं। These worldviews may help us to inherit the riches and success the world has to offer. और ये जो संसार, जो गौरव, जो शान और जो आगे की जो कामयाबी, वो हमारी मदद कर सकती है इन चीजों को पाने के लिए। When you heard your parents and took the trouble to study and no, come on, get it, you get a pass, you got to go to get a college, you got to get a good job, that helped you reach where you have. और जो आपके माता पिता ने आप लोगों के आपको पढ़ाया लिखा, आपको मदद करी कि आप पढ़ो लिखो और आपको अच्छी जगह पे नौकरी लगे, आपकी मदद हुई। But none of this thinking or this kind of world personal visions that we have will help us to inherit the destiny God has for our lives. और इन सांसारिक दर्शनों के वजह से ये हमारी मदद नहीं करने वाले कि हम परमेश्वर के मकसदों को पूरा करें। So there is a personal vision which you may have and God may come in and even bless it. और व्यक्तिगत आपके दर्शन हो सकते हैं जिसको परमेश्वर आशीष देंगे। But there is a vision we live by. और एक दर्शन ऐसा है जिससे हम जीते हैं। And that is where all things of God must begin. और वहीं से सारे परमेश्वर की चीजें शुरू होनी चाहिए। Okay? In order to embrace the destiny of God, we need to adopt His vision for ourselves. अगर हमको परमेश्वर के मकसदों को और उसके भाग्यों को पूरा करना है तो उसके दर्शन को हमें अपनाना है। And very often they will come in conflict with the choices or vision we've had for our own lives and the one we need to make for God. और कई बार उसके विरोध में आ सकते हैं जो हमारा दर्शन है और उसका दर्शन है हमारे लिए। We need to choose between King Uzziah who dies और हमको चुनाव करना पड़ सकता है कि राजा उज्जियाह जिसकी मृत्यु हो गई or the Lord. या प्रभु। If we choose to let go of our previous vision अगर हम चुनाव करते हैं कि हम अपने दर्शन को छोड़ दें and let it die like King Uzziah died, और उसको राजा उज्जियाह की तरह मरने देते हैं, then we too will be able to embrace God's vision and destiny for our lives. और तब हम परमेश्वर के मकसद और उसके भाग्य को हम अपना सकते हैं। Have you finished? See, it's the perspective of God that we must begin to adopt और ये against our परमेश्वर own perspective. और ये परमेश्वर का नजरिया है जिसको हमको अंदर लेना है, ना कि अपने नजरिए को। Okay. A true God-given vision और जो सच्ची परमेश्वर की दी गई दर्शन है gives hope आशा देती है when all hope is lost. जब सारी आशा चले जाती है। How many of you here have known the Lord for 10 plus years? और कितने 15 लोगों ने plus परमेश्वर को 10 साल से जानते हैं? How many times, now keep your hands up, and only those who have to put it down, put it down. How many times have you never lost hope? और कितने लोगों ने कभी उम्मीद को खोया If ही you नहीं? never lost hope,
Keep your hand up. अगर आप लोगों ने अपने कभी भी अपनी आशा और उम्मीद को नहीं खोया है, अपने हाथ को नीचे कर दो। You see, we all lose hope, but Or- in that hopelessness, the vision builds again and gives us hope. और हम सभी लोग एक समय पे उम्मीद खो देते हैं, पर परमेश्वर वापस से आता है, उस उम्मीद को वापस से बना के खड़ा कर देता है। Isaiah is in need to see the vision that inspires, guides, and motivates the people of God afresh. और यशायाह को वो दर्शन देखना होता है जो लोगों को प्रेरणा देता हो, उनका मार्गदर्शन करता हो और उनको हौसला बांध के उनको वापस से खड़ा करता And हो। he is learning that the vision is eternal, the visionary is not. कि वो देखता है कि दर्शन अनंत काल का है, दर्शन देखने वाला अनंत काल का नहीं He है। is also learning the vision is not about him, it is about the world and the peoples of the world. It is about the kingdom of God and not his own. कि वो देखता है कि ये जो दर्शन है संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए है, वो सिर्फ अकेले खुद के लिए नहीं है। And it's not, does not have its origins in his will. और ये यहाँ पर उसकी शुरुआत उसकी इच्छा से नहीं होता। It is a prophetic vision. It comes from the origins of God और ये and the will of भविष्यवाणी God. और ये भविष्यवाणी के तौर पर आता है और ये परमेश्वर के स्वयं की इच्छा से आता है। And so the verse begins. And so in the year King Uzziah died, Isaiah had a vision, correction. Verse 6:1. It says he saw the Lord. और छठे की शुरुआत में कहता है कि जिस वर्ष राजा उजारिया मरा तो उस यशायाह ने परमेश्वर का दर्शन The देखा। vision that Isaiah sees is not an extension of King Uzziah's vision. और जो दर्शन यशायाह ने देखा वो राजा उजाया का एकदम खिंचा हुआ ये चीज नहीं है। It has remained unchanged since the creation of time, but he must see it afresh. और वो कभी बदला नहीं है संसार की शुरुआत से, पर हमको एक ताजगी, एक नए रूप में उसको देखना है। It is the vision of God himself. वो दर्शन खुद परमेश्वर का है। To see his glory cover the earth as the waters cover the sea. जैसे संसार भर में पानी समुद्र संसार को ढाकता है, उसी तरीके से परमेश्वर की महिमा संसार को ढाकती है। And the vision is, we see that God is calling us to participate in that vision. और दर्शन ये है कि परमेश्वर खुद हमको बुला रहा है कि हम उस दर्शन के भागीदार बने। This is what our salvation is all about. और इसी के ऊपर हमारा उद्धार सब कुछ है। It is not simply a confirmed ticket to go to heaven, और ये सिर्फ एक कंफर्म टिकट नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, but it is a ticket to embrace the very heart and purposes of God himself. और ये परमेश्वर पक्का टिकट है परमेश्वर के दिल और उसके मकसदों का। He adopts us into his family with a purpose and then demands that we be part of that family in all fullness. और वो हमको हमारे उसके परिवार में अपनाता है, गोद लेता है एक मकसद के साथ हम सभी को लिए। और हम उस परिवार का पूरा हिस्सा बने, एक मांग करता है कि हम वो पूरा हिस्सा बने पूरी पूर्णता से। Okay? All right. This is a vision that seeks our participation और ये दर्शन हमारी भागीदारी मांगता है and calls us to play a role in it. और हमको बुलाता है कि हम एक भूमिका निभाएं। It is only through this vision that we will find our fulfillment, our purpose, and our destiny. और इसी दर्शन के कारण हम उस चीज की परिपूर्णता और हमारा मकसद और हमारा भाग्य, हमारा मुकाम हम देखते हैं। The inspiration and revelation of the Christian vision is God and only God. कि मसीहों के दर्शन का प्रेरणा और उसका प्रकटीकरण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वरी And है। so even Harvest of Grace has a vision statement and it begins with और big God. और हमारी कलीसिया का भी दर्शन है, सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है बड़ा परमेश्वर। It must therefore begin, okay, that way. And now Isaiah is realizing this vision is not about his insecurity and God coming to change his circumstances because King Uzziah has died. He is realizing it's about God who is initiating something. Uzziahs will come, Uzziahs will go. His word remains forever. और यहाँ पर यशायाह देखता है उस दर्शन को समझता है कि ये सिर्फ उसके बारे में ही नहीं, उसकी कमजोरियों के बारे में नहीं है और उस हालातों के बारे में नहीं कि राजा उज्जियाह की मौत हो चुकी, ये
परमेश्वर के मकसदों के बारे में है। In fact, he is realizing it's not about Isaiah at all, और वो ये देखता है कि ये यशायाह के खुद के बारे में भी नहीं है, but about the heart and dream and the vision that the Creator himself has for his kingdom. और वो देखता है कि ये जो ख्वाब है, ये जो दर्शन है, उस रचयिता का है जिसने सब कुछ बनाया है, That he, Isaiah, is being into to take part in. ताकि आपको बुलाया गया हो, ताकि उसमें हम भागीदार बने। We will not be able to see this verse. There are 3 things or 4 things we need to see. This is the first part of the vision. If you read the whole passage, you can break it up into 5 things. The object of the vision is God. The glory of the vision is heaven, which we will see next time. And of course, there are the essentials of the vision, which is renewal. There is the core vision, which is the response. There is the realization of the vision, that is the immensity of the task. आप इस वचन को देखते हैं, आप उसको 5 में आप तोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। सबसे पहला कि जो औजार है, जो इस दर्शन का, वो परमेश्वर खुद है, और उस दर्शन की जो महिमा है वो स्वर्ग है, और उस दर्शन की जो जरूरी नवीनीकरण है, और जो बुलावा है उस दर्शन का, वो हमारा प्रतिक्रिया, और उस दर्शन का जो हम देखते हैं और कार्य वो है। So today we will look at the first petal of God's vision. It's like a 5-petal flower. और जैसे One flower. पंखुड़ी, तो हम देखते हैं जो 5 पंखुड़ियां, उसके हम पहली पंखुड़ी को आज देखेंगे। In the evening, Uzziah died. I don't know what has died in your life or what needs to die in your life, but whatever, if something is dying or living, you need a vision. और जिस तरह से वचन की शुरुआत उज़्ज़िया की मौत हुई, मुझे नहीं पता आपके जीवन में किस चीज की मौत हुई है और किसी चीज की मौत होगी, पर आपकी शुरुआत उसके बाद एक दर्शन के साथ होगी। And the vision begins with, I saw the Lord. और शुरुआत होती है, मैंने प्रभु को देखा। And seeing the Lord is talked about in 3 ways. और परमेश्वर को देखना 3 तरीकों से बताया गया है। Seated on a throne, सिंहासन पे विराजमान, high and lifted up, ऊंचा और उठाया हुआ, and his train fills the. और उसका वस्त्र का घेरा पूरे मंदिर को भर देता है। You can't even look at heaven if you can't see the Lord. Who is the Lord? अब स्वर्ग की ओर भी नहीं देख सकते, परमेश्वर कौन है? You know, when we look at God, we look at him, he is my savior, he saved me. You know, when I'm down, he lifts me up. He is my father, he cares for me. Your perspective, how you, but how does the Lord self? और जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर को हम इस तरीके से, वो मेरा उद्धार करता है, जब मैं गिरता हूं वो मुझे उठाता है, आ जाऊं तो मेरे वो अगुवाई करता है। हमारा नजरिया परमेश्वर को देखने का, पर परमेश्वर का खुद का नजरिया क्या है उसको देखने का? What is the perspective by which heaven looks at the Lord? और क्या है जिससे स्वर्ग परमेश्वर को देखता है? If you want to bring the kingdom of heaven to earth, we must understand the perspective which heaven sees the Lord. और आपको और मुझको स्वर्ग को लेकर आना है, इस बात को जानना जरूरी है कि नजरिया परमेश्वर की ओर कैसा है। You see, King Uzziah had a perspective of God. राजा उज़्ज़िया के पास परमेश्वर का एक नजरिया था, He worshipped him and sought the Lord. और वो उसकी वो आराधना करता था और उसकी खोज करता था, He even wanted to burn incense before the Lord. और वो चाहता था कि वो धूप परमेश्वर की ओर जलाए। But he did not understand fully or appreciate who God was from heaven's eyes. और वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और प्रशंसा नहीं कर पाया परमेश्वर कौन है। Now Isaiah faces the same challenge. और यही चुनौती तो यशायाह के पास भी आती है। He has to see the Lord and relate with him. उसको परमेश्वर को देखना था और उसको अपनी समझ के अनुसार उससे तुलना करनी थी, But with the revelation of God, बल्कि परमेश्वर के प्रकटीकरण के साथ। not from the perspective, God is calling you, Isaiah, to this great destiny. Come here, Isaiah, you are my son, I love you and I need you. Of course, that's true. But that's not the perspective from which God is calling Isaiah, showing Isaiah a vision. और इस नजरिए से नहीं कि परमेश्वर यशायाह को बोला, आ मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आजा गले लग जा। नहीं, पर ये हमारा नजरिया। I want you to share a destiny because I want to give you great things. Yes, God does, but that's not the perspective he's using here.
हाँ, मैं तुझे मकसदों के बारे में बताता हूँ, तुझे भाग्य के बारे में, तुझे अच्छी चीजें देता। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हमको मिले। Being called to see God from own perspective, from heaven's perspective, not his own. और उसको बुलाया गया कि वो परमेश्वर को देखे, ना कि खुद के नजरिए से, बल्कि स्वर्ग के नजरिए से। And that perspective says, I saw the Lord. और वो नजरिया कहता है, मैंने परमेश्वर को देखा, High and lifted up, ऊंचा और उठाया हो, seated on, सिंहासन पे विराजमान, and his train fills the temple. और उसे उसका वस्त्र का घेरा पूरे मंदिर को भर देता है। Seeing the Lord as the Lord really is, and not as we would like him to be, really the beginning of all. And that is why it's also called the fear of the Lord. और परमेश्वर को देखना उसके खुद के नजरिए से कि वो जिस तरीके से है, वो जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। You know, we are all God's objects of mercy and grace. हम सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र हैं। And we do see God as the one who is there for us because he is. हम देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए है क्योंकि वो है वहां पर। But we fail to see him as the one who we must see, fear, and adore. और हम उस तरीके से उसको देखना भूल जाते या चूक जाते जिस तरीके से वो है, आदर के साथ और उस भय के साथ। Not because of what he does for us, उस तरीके से नहीं जो वो हमारे लिए करते हैं, but by virtue of who he is. बल्कि उस तरीके से जो वो है। Let me give you an example. आपको एक उदाहरण देते हैं। There is a great commander in chief, a great general of the nation. और फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़े सेनापति है एक सेना के। He has a son. उसका एक बेटा है। That son joins the army. वो बेटा सेना में शामिल हो जाता है। Can that son walk up to the general and say, "Hi, Pop, how are you?" in the middle of the whole army? और सारी सेनाओं के सामने क्या वो बेटा अपने बाप के पास जाके बोलता है, अरे पिताजी कैसे हैं आप करके? There is a way to relate with God for who he is. The general is the general. The king is the king, and the Lord is the Lord. और एक तरीका होता है कि उसके पास जाने का, क्योंकि एक सेनापति सेनापति होता है, परमेश्वर परमेश्वर होता है। When we acknowledge Jesus as our savior, और जब कभी हम यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के तौर पे स्वीकारते हैं, we see him from our perspective. He हाँ। saves us, he helps us, he takes us on, which is true. और उसको हम अपने नजरिए से देखते हैं कि वो हमको उद्धार करते हैं, हमको बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। When we acknowledge Jesus as Lord, और जब हम यीशु को अपना प्रभु अपनाते हैं, we see him from his perspective, हम उनको who उनके he नजरिए से really देखते हैं, is, who he really is. जो वो वाकई में है। Okay, he is the one who set us free from captivity in sin to lead us in triumphant procession as the victor's tribute and the treasures of darkness. और वही है जिन्होंने हमारी से छुड़ाया है और हमें विजेता की राह पर चलाया है। So think of the victorious turning back with all the treasures followed in his train behind him, his train filled. और जिस तरीके से देखते हैं कि हम विजेता की तरह से वहां से निकलते हैं और उसका वस्त्र का घेरा, That is the पूरा मंदिर plunder भर of देता है। darkness that behind him, और ये जो अंधकार है जिसको वो पीछे छोड़ आगे चलता because है, it is his by right now. और क्योंकि वो भी उसका अधिकार हो चुका है। And you and I are part of that treasure of darkness that is followed as his train moves on the kingdom of God. और जिस तरह से वस्त्र का घेरा आगे बढ़ता है, ये जो अंधकार का जो खजाना है वो भी हमारा है। No, I never said that. आप और हम उस खजाने के हिस्सा है जो उसके है हकदार, वो हकदार है, और उसके पीछे पीछे एक जय के जुलूस में निकल रहा है। We are not going to share in his treasures, and you and I are part of that treasure. उस खजाने का हम हिस्सेदार नहीं बल्कि है वो जिसका हम हिस्सेदार हैं। So it's important that we see the Lord. और ये बहुत जरूरी है कि हम देखें।
the doctrine of salvation or the gospel says you must acknowledge Jesus Christ as Savior and Lord. और इसी तरीके से उद्धार का संदेश ये कहता है हमें यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करना है। And Lord, not because of what the Lord for you, but what the Lord must mean to you and how the Lord must inspire you to live. और प्रभु इसलिए नहीं कि क्या करे बल्कि इसलिए कि आप क्या करें और कैसे जिए। And so we need to see Jesus. We need to see the Father और इसलिए हमको यीशु हमें देखना है पिता की ओर, seated on the throne. सिंहासन पर विराजमान। Our lives are His. हमारा जीवन उसका है, Our wealth is His. हमारा धन दौलत उसका है, Our homes are His. हमारे घर उसके हैं, Our spouses, our husbands and wives, and our children are His. और हमारे पति और पत्नी जो है वो उसके हैं, और बच्चे जो हमारे वो उसके हैं। Our jobs, our businesses, and all that we possess are His. हमारे नौकरी और हमारे व्यवसाय उसके हैं, जो कुछ हमारा पैसा है सब कुछ वो उसका है। And then, like the 24 elders that lay down their crowns before His throne, और जिस तरीके से जो 24 प्राचीन जो स्वर्ग में है अपने मुकुट को उतारते हैं उसके सामने, we need to lay everything that crowns our lives before His throne, because He wears the victor's crown, He and He alone. और उसी तरीके से हमें भी हमारे जीवन में जो कुछ भी चीज जो हमारा मुकुट है उसके सामने उतार के रखना है, क्योंकि वो ही विजेता का मुकुट पहनता है। So yes, He is your Savior, और हाँ, वो आपका उद्धार करता है, but He is your Lord. Paid the price and bill, and therefore you belong to Him, lock, stock, and barrel. और उसने आपके लिए कीमत चुकाया है, और आपका कण कण सब कुछ उसका है। This is the exaltation and the name above all names. और ये उसके नाम के बढ़ाई है, वो नाम जो सभी नामों के ऊपर ऊंचा है। And any name of fame or claim to fame that we may have is now His and His alone. और जो कुछ भी नाम शाम जो भी हमारा है सिर्फ और सिर्फ उसी का है। He is seated on the throne. वो सिंहासन पर विराजमान And so है। this morning, even as we sang, I think it's from morning it's been about heaven and God exalt. और हम सुबह से देख रहे गीतों में ईश्वर के स्वर्ग में महिमा गा रहे हैं। Where, oh Lord, do I need to you? Where, oh Lord, must you become the king in my life? कहाँ मैं तुझे उस रास्ते को दूं और कहाँ तू Because उस the जीवन second रास्ते thing का is परमेश्वर He बने। is to be high and lifted up. अगर वो है वहां पर तो वो ऊंचा उठाया हुआ है। He is not like other kings. He gives us and grants us grace that enables us to change. और वो बाकी राजाओं के तरह नहीं है, वो हमें अनुग्रह देते हैं ताकि हम बदल सके, That we may bow every aspect of our knee in obedience and honor to Him alone. ताकि हम आदर तरीके से और सम्मान के तौर पर उसके सामने अपने घुटनों को लेकर आए। Are there areas we find hard to bow before the will of God? क्या ऐसी कौन सी मुश्किलें जो परमेश्वर की इच्छाओं के सामने उसकी मर्जी के सामने झुकने को मजबूर है? There will be, because He is calling us to that vision, to see Him. वो है इसलिए क्योंकि वो हमको बुला रहा है ताकि हम देखें ऊंचा उठाया हुआ है। Okay, He gives us this grace and does not treat us as our sins deserve. और वो हमें अनुग्रह देता है, और जिस तरीके से हम पाप करते हैं उस तरीके से वो सलूक नहीं करता हमारे साथ में। As captives from the kingdom of darkness, our fate is death. As captives from the kingdom of darkness, our fate is death. और जो पाप के अंधकार से होकर आए हैं, हमारा जो भाग्य होना चाहिए था वो मृत्यु होना चाहिए। But as captives led in triumphant procession, He gives us the grace to change. और जिसने हमें जीत की उस जुलूस में आगे चलाया है उसने हमें विजय दी है। This is why forgiveness plays an important role in our bringing our lives under the lordship of Christ. Not only do we receive forgiveness, we give forgiveness. I like to use the word we give mercy. और
इसलिए उसका माफी देना और माफी करना एक बहुत जरूरी एक भूमिका निभाता हमारे जीवन को परमेश्वर उस यीशु क्रिस्त की प्रभुता में लेकर आना। जिस तरह से वो जब हमें क्षमा करते हैं तो हम भी क्षमा करते हैं। तो इसका सही तरीका ये है कि हम भी दया दिखाते हैं, दया देते हैं। And so we cannot be sing, and it's good to sing and remind ourselves of who the Lord is, like we did this morning. और अच्छी बात है कि हम गाएं और बताएं कि हाँ कि परमेश्वर है कौन। But in order to embrace the lordship of his lordship in our lives, we need to live a life in obedience to him. और उसकी प्रभुता को अपने जीवन में दिखाने के लिए सिर्फ गीत के द्वारा नहीं बल्कि उस तरीके से जीना भी है हमें। We will be able to see the Lord is not one we sing our platitudes to. हम सिर्फ परमेश्वर को वो बना के नहीं रख सकते कि जिसके लिए सब हम सिर्फ गीत ही गाते रहें, But one we live to serve in every area of our lives. He takes the priority in all things. Our vision is him. We live for him. बल्कि उस तरीके से कि वो उसका हम सेवा करें अपने हर एक क्षेत्र में जीवन में और उसको एक प्राथमिकता बनाए हमारे जीवन में। I think I've almost finished. I just want to finish. I want someone to read in Hindi and someone to read in English. I'm not going to just listen to what describes Jesus by the apostle, how Apostle Paul describes him. और मैं चाहूंगा कि कोई अंग्रेजी में और कोई हिंदी में पढ़े और इस Colossians तरीके से, chapter 1, और मैं चाहता हूं कि कोई पढ़े कि किस तरीके से प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। कुलुस्सियों 1 chapter 1, verses 15 to 23. कुलुस्सियों 1 उसका 15वां वचन से 23 वचन तक। Can someone who feels confident that can read this clearly, can they read it in English first? कोई अंग्रेजी में उसको पहले पढ़े। He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. All to 16. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the church. He is the and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all is in fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. परमेश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि में पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं में सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य हो या प्रभुत्व, अधिकार, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वही समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि में उनमें ही टिकी हुई है। मसीह देह अर्थात कलीसिया का शीर्ष है, वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वो सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। परमेश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता निवास करे। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा परमेश्वर ने शांति की स्थापना की। यही परमेश्वर का शुभ संकल्प था कि वह मसीह के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराए। आप लोग भी अपने कुकर्मों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे और आपके मन में शत्रुता भर गई थी, किंतु अब परमेश्वर ने अपने पुत्र के मानव शरीर में मृत्यु द्वारा आपके साथ मेल कर लिया है, जिससे वह आपको पवित्र और अनिंदनीय बनाकर अपने सामने प्रस्तुत कर सके। किंतु आपको विश्वास के आधार पर दृढ़ और अटल बना रहना चाहिए और उस आशा से विचलित नहीं होना चाहिए जो आप शुभ समाचार द्वारा दिलाई गई है। Your vision of Jesus Christ came the day you Jesus come into my life. आपका दर्शन यीशु मसीह के बारे में, आपने यीशु मसीह को कहा जीवन में आ जा।
Live each day of your life growing in your understanding and knowledge of who He is. और हर दिन अपना जीवन को जियो समझ में और उसके बढ़ोतरी में कि वो God give you the place और वो आपको जगह नहीं देगा to love, not show mercy or grace to those He gives you. जो वो आपको देता है उसके लिए, ताकि आप अपने उस प्यार को, उसके अनुग्रह को जो ना दिखाएं। You see, they may be your own family, हो सकता है वो आपके परिवार वाले हो, other Christians in other churches, अलग मसीह हो, अलग अलग कलीसियाओं के, maybe in your own church, or you may think your own not good enough. और वो आपके कलीसिया के, और आपको लगता है आपकी कलीसिया है वो बेहतर, When I don't have that luxury आपके और मेरे पास वो तरह का सौभाग्य और उस तरह का आराम है to look down on those the Lord has called. कि उनको एक नीची हुई नजर से देखे जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, Because He is my Lord क्योंकि वो मेरा प्रभु है and He is their Lord. और वो उनका भी प्रभु है। I see the Lord high and lifted up, seated on the throne. And so whether I like your face or I don't, I will serve you and love you and honor you. और प्रभु स्वर्ग में सिंहासन पे विराजमान, ऊंचा और उठाया हुआ है। हालांकि भले से मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। His train and of his robe filled the temple. और पूरा मंदिर उसके वस्त्र के घेरे से भर गया। Let us therefore let His grace lead us into a deeper relationship with Him and bring us to a complete bowing of our knees, Lordship. और इसीलिए इस चीज को होने दे कि उसका अनुग्रह हमें उसके साथ एक गहरे रिश्ते में लेकर आए, जहां पर हम परमेश्वर के सामने, उसकी प्रभुता के सामने अपने आप को समर्पण करें और घुटने उसके सामने We टेकें। are the captives in His train, और हम उसके जो घेरा है उसमें बंधुआ ही है, and we need to let Him fill the temple of our lives with all His fullness. और हमको उसको इजाजत देनी है ताकि वो हमारे जीवन को, हमारे जीवन के मंदिर को उसकी प्रभुता से भर दे। He in us and we in Him. That's how the Bible describes it. वो हमारे में और हम उनमें, इसी तरीके से बाइबल कहती है। And as we do so, we will realize in every area of of our lives, He must increase, we must decrease. और इसीलिए जब हमको पता चले, ताकि वो हमारे जीवन में वो बढ़े और हम घटे। There is only one Lord, और सिर्फ एक प्रभु है and we are not Him. और वो हम नहीं है। Jesus Christ is Lord. यीशु क्रिस्त ही प्रभु है। And as we grow in our vision of seeing the Lord, He becomes the vision we live for and serve no one else. और जैसे उसके देखने के दर्शन की ओर हम बढ़ते हैं, तो हम उसके दर्शन के हो जाते हैं और उसकी सेवा हम करते हैं और किसी के नहीं। This is how Isaiah saw the Lord, and this is the same vision our salvation calls us to see and embrace. और इसी तरीके से यशायाह ने प्रभु को देखा और इसी तरीके से हमको बुलाया उनको गले लगाने के लिए। And so I'll song with you this. I like to that song always. So I leave this old Irish song. It's a hymn. और एक गीत के साथ मैं समाप्त करूंगा। Out in English, Jack will read me in Hindi, and then I'll play it. And you'll sit and listen. And if you feel, Lord, I want to commit myself to knowing you even more, I want to settle my accounts with those whom I've got issues with. Let me do this, Lord, because I want to see you high in my life. और इस गीत को अंकल डोना देंगे और फिर इसके बाद मैं इसका अनुवाद करूंगा। और अगर आपके दिल में ऐसे कुछ चीजों को, किसी के लिए चीज को आपने पकड़ के रखा है और कुछ ऐसे जो चीजें जिनको निपटना बाकी है, तो आप परमेश्वर के पास जाइए और चीजों को आप सही करिए। Be thou my vision. बन Come read it, or मेरी दृष्टि बनो. Be thou my vision, O Lord of my heart. मेरे दृष्टि बनो, हे परमेश्वर मेरे दिल के।
not be else to me, save that which you are. और वो सब ना बने बल्कि मुझे बचा। Thou my best thought, तू मेरा सही विचार है, by day, by night, दिन में भी और रात में, walking or sleeping, your presence my light. जागना या सोना, तेरी उपस्थिति मेरी रोशनी। Next one. Be thou my wisdom and thou my true word. तू मेरी बुद्धि बन और तू मेरा सच्चा वचन। I ever with thee and thou with me, Lord. मैं हमेशा तेरे साथ और तुम मेरे साथ प्रभु। Thou my great Father and I thy true Son. तू मेरे महान पिता और मैं तेरा सच्चा पुत्र। Thou in me dwelling and I with thee one. तुम मुझ में निवास करता है और मैं तुझ में। Riches I heed not, nor vain empty praise. Thou mine inheritance, now and always. मैंने दौलत पर ध्यान नहीं दिया, न ही व्यर्थ खाली प्रशंसा। तुम ही मेरा विरासत अभी और हमेशा। Thou and thou only first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. तू और तू केवल मेरे दिल में पहले, स्वर्ग के ऊंचे राजा, मेरा खजाना तू है। High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, O bright heaven's sun. स्वर्ग के ऊंचे राजा, मुझे जिताया, मैं स्वर्ग के पहुंचूं, हे उज्जवल स्वर्ग के सूरज। Heart of my own heart, ever befall, still be my vision, O ruler of all. मेरे अपने दिल का दिल, चाहे जो भी हो, फिर भी मेरी दृष्टि बनो, हे स्वर्ग के शासक। Let me make that our prayer, but do it as you feel like. Let's play it, let's listen to it. And as you feel, write your transaction with God, and we will bring this meeting to an end.